وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو اجلاس عام ہے، اس اجلاس عام میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک ایسے عنوان، ایک ایسے موضوع سے متعلق گفتگو کرنی ہے یا بات کرنی ہے جو عنوان میری اور آپ کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور حالات میری اور آپ کی زندگی کے بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کی طرف توجہ دینا وقت کا بڑا ہی اہم تقاضا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اسلام، جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں کئی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کئی قسم کی تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی اور پڑھائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، انبیاء جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ کوئی بھی نبی جو اس دنیا میں آتے ہیں وہ دو قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں اما یأتی بالخبر و اما یأتی بالامر، یا تو انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتوں کی خبر لے کر آتے ہیں، کچھ باتوں کی اطلاع اور کچھ باتوں کے بارے میں جانکاری لے کر آتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں، جن کی تصدیق کرنا، جن کو سچا جاننا، جن پر یقین کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ یا دوسرے نمبر پر انبیاء علیہم السلام امر لے کر آتے ہیں۔ امر کہتے ہیں شریعت کو، امر کہتے ہیں احکام کو۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو کچھ کرنے کے کہ تمہیں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، مأمورات کی ایک فہرست لے کر آتے ہیں، یا پھر کچھ چیزوں سے منع کرنے کی ہدایت لے کر آتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اسلامی شریعت جسے کہتے ہیں وہ حقیقت میں انہی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو خبر ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو خبر لے کر آتے ہیں ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے،
اسے ہم اور آپ عقائد کہتے ہیں. ہمیں عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی دنیا کے بارے میں، زمین کے بارے میں، ماضی کی اقوام کے بارے میں، مستقبل کے حادثات کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، روز محشر کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات جس بات کی خبر دی، اس پر ایمان لانا یہ عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا. اور پھر اس کے بعد اس عقیدے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی حکم دیا ہے، کرنے کو کہا ہے، اسے کریں گے. فرض ہے تو ہر حال میں کریں گے، سنت ہے تو جہاں تک ہو سکے نبھانے کی کوشش کریں گے. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے تو جس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے اس چیز سے رک جائیں گے. اگر وہ حرام ہے، گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے تو کلی طور پہ پرہیز کرو، رک جاؤ، چھوڑ دو، باز آ جاؤ. اور اگر وہ چیز ایسی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا لیکن پھر بھی شریعت مطہرہ کی نظر میں اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے، اس کا کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہات ہیں، تو اس سے بھی بچ جانا چاہیے. یہی دین اسلام ہے. حاضرین گرامی قدر، اگر یہ بنیادی مسئلہ میری اور آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. یہ جو احکام ہیں، اوامر کی جو دنیا ہے، ان احکام اور اوامر کو اہل علم دو حصوں میں بانٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے کچھ کام وہ ہیں جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں اور کچھ کام وہ ہیں جنہیں ہم معاملات کہتے ہیں. عبادات کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے وہ احکام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات جن کا تعلق بندے اور رب کے درمیان کے آپسی رشتے سے، جن کا تعلق بندے اور رب کے درمیان کے معاملات سے. بندہ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے رب العالمین کے سامنے جو کام کرتا ہے یہ عبادت کہلاتی ہے. اور اس سے ہٹ کر ایک بندہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات جتنی بھی ہیں، ان مخلوقات کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے خاندان میں ننیالی، ددیالی، پڑوس کے لوگ، مسلمان، غیر مسلم، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ حتیٰ کہ تمہارے اطراف و اکراف چلنے والے جو جانور ہیں، یہ جو کتا بلی ہیں، یہ کیڑے پتنگے، ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کے جو احکام اسلامی شریعت نے سکھائے ہیں، ان کی پابندی کو معاملات کی دنیا کہا جاتا ہے. ایک طرف عبادات ہیں جو میرے اور میرے رب کے درمیان کے معاملات ہیں، اور دوسری طرف معاملات ہیں جن کا تعلق میرے اور بقیہ دنیا سے ہے. مجھے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. بھائیو، ان میں سے جن کو عبادات کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو بندے اور رب کے درمیان کے خاص کام، وہ کام جن کو عبادت کہا گیا ہے، یاد رکھیے گا اسے اسلامی شریعت میں جسے عبادت کہا جاتا ہے نا، اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک اس کا عبادت کا عام معنی ہے. عام معنی کا مطلب یہ کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے سارے معاملات، عقیدہ بھی، اللہ کی عبادت بھی، میرے اور آپ کے اخلاق بھی، میرے اور آپ کا کاروبار بھی، ہمارا اور آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، زندگی کے سارے مسائل میں رب العالمین کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر جینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے. جتنی باتیں کرنے کو کہی ہیں کرنے کی کوشش کرنا، جتنی باتوں سے منع کیا ہے سب سے رک جانے کی کوشش کرنا، یہ رب العالمین کی عبادت کا عام معنی. اس میں کل دین آ جاتا ہے، اس میں ساری شریعت آ جاتی ہے، اس میں قرآن و سنت کی تمام ہدایات آ جاتی ہیں. ان کے مقابلے میں عبادت کا ایک خاص مفہوم ہے، اور وہ خاص مفہوم کیا ہے معلوم ہے؟ وہ خاص مفہوم ہے وہ خاص معاملات جو بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کے لیے کرتا ہے. وہ عبادتیں جنہیں ہم نے عبادات کے نام سے معاملات سے الگ کر کے دیکھا نا، یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی کا بڑا ہی اہم حصہ ہیں. حاضرین گرامی قدر، میں ذرا اس کی وضاحت کر لیتا ہوں کہ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی. کلمے کے اقرار کے بعد اسلام کا پہلا رکن ہے نماز. نماز عبادت.
इसमें आदमी के दिल से, आदमी की जबान से और आदमी के आज़ा से बंदा इबादत करता है, तमाम तीनों चीजें से। ये बदनी इबादत, ज़कात दूसरा रुकन है, उसके बाद अल्लाह की राह में माल खर्च करना, ये माली इबादत है, ये भी एक इबादत है। रोजा रखना बदनी इबादत है। हज करना माल और बदन दोनों लगते हैं, माली और बदनी इबादत है। कुरान मजीद की तिलावत करना एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते रहना एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहना, उठते बैठते चलते फिरते और मुख्तलिफ मुनासबतों से अल्लाह ताला को याद करना, ये भी अल्लाह ताला की इबादत है। इससे हटकर अल्लाह तबारक व तआला से शदीद मोहब्बत रखना, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी सारी उम्मीदों को वाबस्ता कर लेना, हमारी सारी हाजतों में हमारी उम्मीदों का महवर और मरकज अल्लाह ताला बन जाए। और इतना ही नहीं, रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरना, रब्बुल आलमीन पर पूरा तवक्कुल करना, रब्बुल आलमीन की तरफ हमेशा हमारा दिल झुका रहे, हमेशा अल्लाह ताला की तरफ माइल रहे। ऐसी इबादतों को कल्बी इबादतें, दिल से की जाने वाली इबादतें कहा जाता है। भाइयों, ये जो सारे काम हैं इनको हम इबादात कहते हैं। और आज जो बातें मुझे आप हजरात और खवातीन के सामने जिक्र करनी है वो इन्हीं इबादतों के सिलसिले में। भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी का हल्का सा जायजा भी एक बहुत बड़ी हकीकत हमारे और आपके सामने रखता है। और वो जायजा क्या है मालूम है? हमारी और आपकी जिंदगी में इबादतों से ताल्लुक मुसलमानों की बड़ी तादाद का सरे से है ही नहीं। कितने मुसलमान हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न ज़कात का उन्हें शऊर है, न रोजे का एहसास है, न हज बैतुल्लाह की तौफीक होती है। माह रमजान में दिन में खाने पीने वाले मुसलमान मिलेंगे, ऐन नमाज के वक्त में मस्जिद के बाहर दुकान पे बैठ के गप्पे हाँकने वाले मुसलमान मिलेंगे। आप देख लें, अल्लाह ताला ने माल दिया है लेकिन कभी ज़कात निकालने की फिक्र नहीं, ऐसे मालदार मुसलमान भी आपको मिलेंगे। और अल्लाह ताला की तौफीक से बहुत नवाजा है अल्लाह ताला ने, तो हिंदुस्तान में बाहर इंटरनेशनल टूर पे टूर करते हैं, फैमिली टूर करते हैं, दोस्तों के साथ टूर, लेकिन अल्लाह ताला के लिए हज बैतुल्लाह करने की तौफीक नजर नहीं आती। कुरान मजीद जिंदगी में कभी छुआ नहीं, अल्लाह ताला के जिक्र के नाम पे कोई जिक्र याद नहीं। ऐसे कितने मुसलमान हैं जिनकी जिंदगियों में इबादतों से रिश्ता है ही नहीं, इस्लाम से रिश्ता है, नाम मुसलमानों वाला, पूछो तो कलीमा भी सुनाए और दीन के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार भी करे, लेकिन जब बात इबादतें करने की आए किसी इबादत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। और जब जाहिरी इबादतें ही नहीं है, बातिनी इबादतें तो और ज्यादा होशो हवास चाहती हैं, अल्लाह की मोहब्बत का भी इदराक नहीं, अल्लाह ताला से उम्मीदों का वो जो यकीन का ताल्लुक होना चाहिए वो नहीं, अल्लाह ताला का डर भी दिल में कमा हक हो नहीं, अल्लाह पे कामिल तवक्कुल नहीं, उनके दिल में कभी अल्लाह ताला की तरफ लपकने का, आगे बढ़ने का ख्याल नहीं। ये आम मुसलमान की जिंदगी में आप देखिए, इबादतों से किसी किस्म का रिश्ता उसकी जिंदगी में नजर नहीं आता। और उसके मुकाबले में हम अपने उन भाइयों और बहनों की बात करें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने किसी हद तक ये इबादतें अंजाम देने की तौफीक अता फरमाई है। हम में से जो लोग नमाजी हैं या हम में से जो लोग रमजान में रोजा रखते हैं, हम में से जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना, इनका मुआमला भी ये है कि ये इबादतें करते हैं लेकिन कई बार फर्ज से आगे बढ़कर सुन्नतें कभी इनकी जिंदगी में नहीं आती, फर्ज रोजों से आगे बढ़कर मसनून रोजे इनकी जिंदगी में नहीं आते, अल्लाह की राह में ज़कात से आगे बढ़कर आम सदकात और खैरात अतियात अल्लाह की राह में देने की फिक्र इनकी जिंदगी में नहीं आती। ये बताता है कि जिनका ताल्लुक इबादतों से है उनका ताल्लुक भी इबादतों से वैसा नहीं है जैसा ताल्लुक के हकीकत में ये कामिल मोमिन का होना चाहिए, एक अच्छे मुसलमान का होना चाहिए। हम तो ऐसे हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला के आयद करदा फराइज जैसे नमाज या रोजा अदा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सर से कोई बोझ उठा के नीचे रखा हो। हम इबादत करते हैं तो ऐसे जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सर पे था, उठाकर रख दिया तो बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए। इबादत में शौक नहीं, इबादत में जज्बा नहीं, इबादत के लिए दिल के अंदर बेकरारी नहीं, इबादत के लिए के बाद दिलों के अंदर इत्मीनान नहीं। ये हमारी और आपकी इबादतों की कैफियत है। भाइयों, ये जो सूरत हाल है
चाहे इबादतों से पूरी तरह ला ताल्लुक होने का मसला हो या इबादतों से ला ताल्लुक तो नहीं है लेकिन ताल्लुक जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ये एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार मुझसे लेकर आप तक और हमसे लेकर समाज के हर मुसलमान तक आप देखेंगे, हर कोई इसका शिकार, हर कोई इसका बीमार आपको नजर आएगा। भाइयों, आज हमें जिन रास्तों पे मेहनत करने की जरूरत है उनमें से एक बड़ा अहम मैदान है हमारी और आपकी इबादतों की इस्लाह, इबादतों में मेरे और आपके हिस्सेदारी को बढ़ाना, इबादतों से हमारे और आपके ताल्लुक को मजबूत करना, इबादतों से हमारे और आपके ऐसे शगफ का मुजाहरा करना कि जिसको देख के लगे कि वाकई ये इबादत हमारे और आपके लिए बोझ नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, हमारे लिए कोई सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि हमने इस इबादत को उसकी हकीकी रूह के साथ पहचाना है और इबादत को हम और आप वाकई मानों में पहचानते हैं। अज़ीज़ गिरामी क़द्र, आज इसी बुनियादी पैगाम को मैं जरा खुले अल्फाज में यानी बात को जरा खोल कर आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम अपनी इबादतों की इस्लाह कर सकें। इबादतों से मेरा और आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं और आप मजबूत कर सकें, इसी मकसद के तहत कुछ बातें आज आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। इनमें सबसे पहली बात जो आपको बताना चाहूंगा वो क्या है? भाइयों, एक बड़ी गलत फहमी हमारे और आपके समाज में है। वो क्या है मालूम है? हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला को उसका हक दे रहे हैं। किस माने में दे रहे हैं? जैसे अल्लाह तबारक व तआला पर गोया नऊज़ु बिल्लाह उसका हक अदा करके हम आजाद हो जा रहे हैं। एक बात बड़ी अहम समझो, कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने यह बात हमें साफ तौर पर बताई कि जिसे इबादत कहते हैं ये अल्लाह का हक है, इसीलिए इस हक को सिर्फ अल्लाह को देना चाहिए, गैरुल्लाह को नहीं देना चाहिए। इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, गैरुल्लाह की इबादत नहीं होनी चाहिए। और इस इबादत में हमें मुखलिस होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी की फिक्र होनी चाहिए। इसमें सब कुछ अल्लाह का नाम है, अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अल्लाह ही को राजी करने के लिए कर रहे हैं, ये सब है। लेकिन एक बात बड़ी अहम कुरान और सुन्नत में बताई गई, वो क्या है? का इबादत अल्लाह ताला के लिए करते हो लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व ताला का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे इबादत करने से अल्लाह ताला को कुछ मिलता नहीं है और तुम्हारे इबादत न करने से अल्लाह तबारक व ताला का कोई नुकसान होता नहीं है। ये मसला अच्छी तरह से हम और आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। हमारी इबादतों से अल्लाह तबारक व ताला का कोई फायदा नहीं और हमारे इबादत न करने से रब्बुल आलमीन का कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ईमान वालो, तुम सब के सब फकीर हो, तुम मोहताज हो अल्लाह तबारक व तआला के। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह तबारक व तआला ही बेनियाज है, काबिल तारीफ है। भाइयों, इस मसले को अच्छे से समझ लो। हमारी इबादतों से अल्लाह ताला को कुछ मिलता नहीं, हालांकि अल्लाह के हक के नाम पे हम करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, इखलास के साथ अल्लाह ताला ही के लिए अंजाम देते हैं, लेकिन इससे अल्लाह ताला को कुछ मिलता नहीं। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैआ। कहा, तुम में का जो पहला इंसान है उससे लेके आखिरी इंसान तक, और जिन्नों में से सारे इंसान पहले से लेके आखिरी तक, यानी मुकल्लफ मखलूकात सारे के सारे मिल जाए और सब मिलकर भी सबसे मुत्तकी इंसान के तकवे का जो मुकाम और जो दर्जा होगा ना, उस दर्जे के मुत्तकी भी बन जाओ, मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैआ। तुम्हारे मुत्तकी हो जाने, तुम सबके मुत्तकी हो जाने से मेरी बादशाहत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। और यही बात यूं भी कही कि तुम सब मिलकर दुनिया में गुनहगार से गुनहगार जो इंसान हो सकता है उस दर्जे के गुनहगार बन जाओ, मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैआ, मेरी बादशाहत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। भाइयों, एक मसला समझ लो, हमारी जितनी इबादतें हैं हम अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इनमें कोई फायदा नहीं। फिर किसका फायदा?
अल्लाह ने कुरान में कहा, इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम कुछ अच्छा करते हो तो अपने साथ अच्छा करते हो। तुम अगर एहसान कर रहे हो तो रब्बुल आलमीन पे नहीं, अपने आप पर एहसान कर रहे हो। ये मसला अच्छी तरह से समझ लेना। अल्लाह ने फरमाया, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ये लोग एहसान जतलाते हैं कि इन्होंने इस्लाम लाया। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अल्लाह के नबी आप कह दीजिए कि लोगो तुम मुझ पर अपना एहसान मत जतलाओ, वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, एहसान तो अल्लाह का है और एहसान जतलाने का हक भी अल्लाह का है कि उसने तुम्हें हिदायत दी है कि तुम ईमान लाए हो। अल्लाह के बंदो, इबादतें करके तुम और मैं अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन पर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहली बुनियादी बात ये समझ लो, इबादतें रब्बुल आलमीन की जरूरत नहीं है, मेरी और आपकी जरूरत है। इन इबादतों का फायदा अल्लाह ताला को नहीं मिलता, इसका फायदा मुझे और आपको मिलता है। हम और आप अगर इबादतों में कोताही करते, रब्बुल आलमीन का इसमें कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान है तो मेरा और आपका नुकसान है। घाटे का सौदा हम कर रहे हैं, नुकसान हम उठा रहे हैं। हमें अपने आप को यह देखना पड़ेगा कि इबादतों में पीछे रहकर हमने किसका नुकसान किया। हम अपना नुकसान कर रहे हैं, पराये का नहीं, रब्बुल आलमीन का नहीं, किसी और का नहीं, तीसरे का नहीं, चौथे का नहीं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हर इबादत में कोताही करने वाला सबसे पहले अपना नुकसान कर रहा है। ये बुनियादी मसला याद रखिए भाइयों। अगर यहां पहुंचकर यह बात साफ हो जाती है कि ये इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए मशरू करार दी है, तो फिर इन इबादतों की अहमियत को समझो भाइयों। ये जो इबादतें हैं ना, वो नमाज हो, वो ज़कात हो, वो रोजा हो, वो हज हो, वो अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद की तिलावत हो, वो अल्लाह ताला का जिक्र हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह ताला से उम्मीदें वाबस्ता करना हो, या जिंदगी की कोई भी इबादत क्यों ना हो, ये बात याद रखना, इस इबादत से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा और आपका मुकाम बढ़ाया है, मेरी और आपकी हैसियत अल्लाह ताला ने बढ़ा दी। आपको मालूम है, आदमी कई बार इबादतें करते करते धोखे में आ जाता है। आदमी ये समझने लगता है कि मैंने इबादत करके गोया बहुत बड़ा तीर मार लिया। अल्लाह के बंदो, एक बहुत साफ मसला आप समझो, बहुत साफ, बहुत आसान मसला मैं आपके सामने रखता हूं। इन इबादतों से हकीकत में हमारी शान बढ़ती है, हमारी हैसियत बढ़ती है। ये इबादतें मेरे और आपके दर्जे को बुलंद करते हैं। हमारी हैसियत और हकीकत क्या है मालूम आपको? कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक महीन पानी से पैदा नहीं किया? हमारी हैसियत क्या है? एक मामूली सा नुत्फा। सुभान अल्लाह, सलफ़े सालिहीन में से बाज ने तकब्बुर के मौजू पे गुफ्तगू करते हुए बहुत बड़ी बात लिखी, और वो बात क्या है मालूम है? उन्होंने लिखा है, मुझे ताज्जुब होता है उस इंसान पर जो इस दुनिया में आने से पहले दो दो मर्तबा पेशाब के रास्ते से गुजरता है और फिर भी दुनिया में आके तकब्बुर करता है। सुभान अल्लाह, इंसान की यही हकीकत है अल्लाह के बंदो। इंसान की हैसियत क्या, इंसान का वजन क्या? रब्बुल आलमीन ने अगर मुझको और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उसकी इबादत को मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद करार दिया है, इससे तो हमारी हैसियत बढ़ गई, इससे तो हमारा दर्जा बढ़ गया, इससे तो हमारा एतबार कायम हुआ, इससे तो अल्लाह ताला के सामने, दुनिया के सामने हमारा वजन बढ़ा है, हमारा दर्जा बढ़ा है। अल्लाह के बंदो, इन इबादतों को इसी स्पिरिट के साथ, इसी रूह के साथ पहचानने की कोशिश करो। रब ने उसकी अपनी इबादत करने का मौका देकर हम और आप पर बड़ा एहसान किया। रब ने उसकी अपनी इबादत की तौफीक देकर हम और आप पर बड़ा इनाम किया। रब ने उसका अपना इबादत गुजार बनाकर मुझको और आपको बहुत कुछ दे दिया है। हम चाहे जितना जोर लगा ले, दुनिया में जितने ऊपर उठ सकते हैं उठ ले, लेकिन अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदगी करके हम जितने ऊंचे उठते हैं ना, किसी और रास्ते से हम इस कदर ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। भाइयों, इन इबादतों को पहचानो, इन इबादतों की हमारी और आपकी जिंदगी में जो हैसियत है, जो मुकाम है, उसे पहचानने की कोशिश करो। चलो मैं एक बात और आपके सामने रखता हूं, ये इबादतें मुझको और आपको क्या देती हैं, इन इबादतों से मुझे और आपको क्या मिलता है, और इन इबादतों के न करने से या इन इबादतों में कमी करने से
मेरा और आपका क्या नुकसान होता है, कैसा घाटा मेरा और आपका होता है, इस मसले को जरा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। कई नुकात में मैं आपको यह बात समझाता हूं। सबसे पहला नुक्ता जो बताएगा कि इस इबादत से मुझको और आपको क्या मिलता है, इस इबादत के बगैर क्या जाता है, क्या नुकसान होता है, आप इस बात को समझिए। आप जानते हैं, आप अगर एक पौधा लगाते हैं, आपने बीज बोया या पौधा लगाया, अब इस पौधे को तनावर दरख्त बनकर खड़ा होने के लिए ठीक वक्त पर पानी चाहिए, ठीक वक्त पर उसे धूप चाहिए, ठीक वक्त पर उसे हवा भी चाहिए, उसकी देख रेख भी चाहिए, बहुत कुछ। जब सारी चीजें सही से मैसर होती हैं तो फिर वो कमजोर सा पौधा एक तनावर दरख्त बन जाता है और फिर अपने नीचे बहुत सारों को साया देता है, कितने परिंदों को घोंसला बनाने का मौका देता है, और इतना ही नहीं, फलदार दरख्त है तो सारी दुनिया को अपना फल खिलाता जाता है। भाइयों, अगर ये मिसाल आपकी समझ में आ रही है तो फिर इबादतों के किरदार को समझने के लिए समझो, ईमान जो मेरा और आपका ईमान है, ये ईमान भी एक दरख्त है। इस दरख्त को भी देख रेख की जरूरत पेश आती है, इस दरख्त पर भी तवज्जो और मेहनत की जरूरत पेश आती है। अगर हम इबादतों पे मेहनत करेंगे, ये इबादतें दीनो ईमान का हिस्सा हैं, ईमान का जुज हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मेरे और आपके ईमान की जिंदगी है। इबादतें ईमान की जिंदगी है। इन इबादतों से ईमान जिंदा रहता है, इन इबादतों से ईमान को जिंदगी मिलती है, और न सिर्फ ये कि जिंदगी मिलती है, इन इबादतों से मेरा और आपका ईमान तरोताजा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ईमान की ताजगी का और इसकी हिफाजत का जरिया इन इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया हुआ है। आज आप देख लो, जिस आदमी की जिंदगी में इबादतों से जितना कमजोर ताल्लुक है, हकीकत में आप देखेंगे उसके ईमान का दर्जा भी उतना ही ज्यादा नीचा होता है। जिस आदमी की जिंदगी में इबादतों का मामला ज्यादा गहरा होता है, वो ज्यादा इबादत करने वाला होता है, अल्लाह की तौफीक से उसके ईमान की खेती लहलहाती है। वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से ईमान की ताजगी महसूस करता है। वो समझता है कि अंदर से वो जिंदा है, ईमान उसके अंदर जिंदा है। इबादत करने वाला इंसान ही ईमान की जिंदगी और ईमान की ताजगी को महसूस कर सकता है। इन इबादतों में अल्लाह ताला ने यह तासीर रखी है कि ये मेरे और आपके ईमान की जिंदगी भी बनते हैं, और ये इबादतें मेरे और आपके ईमान की ताजगी भी बनती हैं। हाज़िन गिरामी कद्र, इन इबादतों का दूसरा बड़ा फायदा क्या है? अगर ये ना हो तो हम क्या गंवाते हैं, और अगर हो तो हम क्या कमाते हैं? अगर इसको आप पहचानना चाहते हैं तो ये पहलू देखो, ये इबादतें रब्बुल आलमीन और बंदे के दरमियान का रिश्ता है, रब्बुल आलमीन से जुड़ने का जरिया है, रब्बुल आलमीन से कांटेक्ट या राबिता कायम करने का जरिया है। और रब्बुल आलमीन से आज बताओ दुनिया में कौन इंसान बेनियाज हो सकता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से तो यह पता चलता है, एक पलक झपकने तक के लिए भी कोई इंसान रब्बुल आलमीन के फजल से, उसके करम से बेनियाज नहीं हो सकता। हम मोहताज हैं रब के करम के बगैर, रब के रहम के बगैर, उसकी देन के बगैर, उसकी नवाजिश के बगैर मेरी और आपकी दुनिया अधूरी, मेरी और आपकी आखिरत अधूरी है। अल्लाह के बंदो, उस रब से कांटेक्ट बनाने का, रिश्ता जोड़ने का, राबिता कायम करने का जरिया यही इबादतें हैं। जो बंदा इन इबादतों से जुड़ता है वो रब्बुल आलमीन से जुड़ता है। जो बंदा इन इबादतों से कटता है, साफ सुन लो, वो रब्बुल आलमीन से कटकर दूर हो रहा है। मैं आपको बताऊं एक मिसाल, आप ये बात याद रखिए। समाज में कभी कभार अल्लाह ताला के फैसले हिकमतों भरे, ऐसे भी अल्लाह फैसले करता है कि बच्चे के बाप माँ दोनों के दोनों इंतकाल कर जाते हैं। अब वो बच्चा जिसके माँ बाप दोनों इंतकाल कर गए हों, वो जहां नजर आता है बेसाख्ता लोगों के दिलों में उसके लिए तरस पैदा हो जाते हैं, लोगों के दिलों में उसके लिए शफकत का जज्बा उमड़ पड़ता है, लोग उसे काबिल रहम समझते हैं, तबसरे भी करते हैं, सुभान अल्लाह, देखो कितना बदकिस्मत बच्चा है, न माँ है न बाप है, दोनों का साया इसके सर पर से उड़ गया। बड़ी अच्छी बात है, यतीमों के तई ये एहसास बड़ा अच्छा है। लेकिन आज एक हकीकत यहां से सुन लो और इसे जिंदगी भर याद रखना, ये कि यतीम उतना बेकस और मजबूर और काबिल रहम नहीं है जितना वो बंदा काबिल रहम है जिसका रिश्ता रब्बुल आलमीन से टूटा हुआ है। जो अपने माँ बाप से महरूम है,
उसकी यतीमी उतनी काबिल रहम नहीं है जिस कदर ज्यादा काबिल रहम वो इंसान है जिसका ताल्लुक अपने रब से नहीं जुड़ा हुआ है, जो अपने रब से कटा हुआ है, जो अपने माबूद हकीकी से दूर है। उससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई और यतीम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा काबिल रहम हालत में जीने वाला कोई नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, क्या चाहिए आपको? दुनिया में क्या चाहिए? आखिरत में क्या चाहिए? सब मिलेगा रब्बुल आलमीन के पास, और रब से दूर जाओगे कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। रब देना चाहे आजमाने के लिए, फितने में मुब्तला करने के लिए दुनिया दे देगा, लेकिन आखिरत तो अल्लाह ताला किसी को नहीं देगा। मिलेगा तो रब के पास मिलेगा, मिलेगा तो रब से जुड़ने में मिलेगा। आप ये समझ लो, ये इबादतें अल्लाह ताला का वो तोहफा है जो मेरा और आपका रिश्ता रब्बुल आलमीन से जोड़े रखती है। इन इबादतों की अहमियत को समझो अल्लाह के बंदो। हमने वो जो समझा है ना, एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज है, एक वक्त आया तो उठाकर उतार दिया, बेफिक्र हो गए, नहीं। जिंदगी इबादतों में घिरी रहनी चाहिए। जिंदगी एक इबादत से निकले तो दूसरी इबादत में दाखिल होने का नाम, एक इबादत का वक्त खत्म हुआ तो दूसरी इबादत। और आप देख लो, कम से कम अल्लाह ताला का जिक्र एक ऐसी इबादत है 24 घंटे आप कर सकते हैं। हत्ता कि यहां तक इस्लामी शरीयत ने कहा बावजू होना भी जरूरी नहीं, अल्लाह ताला के जिक्र के लिए हर हाल में कर सकते हैं अल्लाह ताला का जिक्र। तो इबादतें मेरी और आपकी जिंदगी में क्या किरदार अदा करती हैं? तो उसका एक जवाब ये भी है कि ये रब्बुल आलमीन से मेरा और आपका कांटेक्ट या राबिता बना कर रखने का नाम है इन इबादतों का ये फायदा। अब आप सोचो, जो लोग इबादतों से कटते हैं वो रब से कटते हैं, और जो रब से कट के दूर जाते हैं वो कहां जाते हैं? वो कहां जाते हैं अल्लाह के बंदो? एक आदमी चश्मे के पास से उठकर सहरा में भटकने जाए तो दुनिया उसे बेवकूफ कहती है, उससे बड़ा बेवकूफ वो है जो रब्बुल आलमीन से कट के दुनिया कमाने दुनिया में जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, ये इबादतें रब्बुल आलमीन से जुड़ने का जरिया है, इस मसले को याद रखो। इन इबादतों का एक और किरदार भी है जो मेरी और आपकी जिंदगी में है, और बड़ा अहम किरदार है, इसको भी पहचानो अल्लाह ताला के बंदो। वो क्या है मालूम है? देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको पैदा किया, रूह और जिस्म का मुरक्कब बनाया, यानी अल्लाह ताला ने हमें रूह और जिस्म से को मिलाकर इंसान बनाया। ये जो इंसान आपके सामने है, आप मेरे सामने, हम जो हैं, ये हम रूह और जिस्म दोनों से मिलकर बने। अब यहां एक बात समझ लो, इस दुनिया में हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मजा लेते हैं, सारी चीजें, ये सारी चीजें मेरे और आपके जिस्म तक पहुंच रही। ये मेरे और आपके जिस्म को बड़ा भी करते हैं, ताकतवर भी बनाते हैं, और मेरे और आपके जिस्म के लिए बहुत बड़ा सहारा भी बनती हैं। ये इबादतें मेरी और आपकी जिस्मानी तरक्की का जरिया है। माफ कीजिएगा, ये दुनिया की नेमतें मेरे और आपकी जिस्मानी तरक्की का जरिया है। लेकिन दूसरी चीज जो मेरी और आपकी रूह, जो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके अंदर रूह रखी है, याद रखना, इस रूह की जरूरतें जिस्म की जरूरतों से जुदा है, अलग हैं। और इस रूह की भी अल्लाह ने ग़िज़ा रखी है, इस रूह को भी भूख लगती है, इस रूह को भी सही ग़िज़ा मिलती है, तो ये रूह भी वैसे ही बड़ी होती है जैसे इंसान बड़ा होता है, और ये रूह भी वैसे ही तरक्की करती है जैसे इंसान तरक्की करता है। नाकिस ग़िज़ाइयत यानी इंसान को सही ग़िज़ा ना मिले, उसका जिस्म तरक्की नहीं करता, दुबला रह जाता है, सुखड़ा रह जाता है, कद नहीं बढ़ता। ये सारी चीजें आप देखते हैं ना, ये मसला समझो। रूह को भी अगर सही ग़िज़ा ना मिले और सही मिकदार में ना मिले, मेरी और आपकी रूह भी सुखड़ जाती है, सिमट जाती है, वो महदूद रह जाती है, तरक्की नहीं कर पाती है। और रूह की ग़िज़ा क्या है? रब्बुल आलमीन का दिया हुआ इल्म और रब्बुल आलमीन की ये इबादतें, यही मेरी और आपकी ग़िज़ा है रूह की। मेरी और आपकी रूह की ग़िज़ा, यही दो चीजें, इल्म और इबादत ही से हमारी और आपकी रूह परवान चढ़ती है। और आज हमारा और आपका एक मसला, आपने देखा होगा ना, कई बार हम अपने समाज में मिसाल देते हुए कहते हैं, किसी आदमी को कम अक्ली की बात करते हुए या कम अक्ली का कोई काम करते हुए देख लेते हैं ना, तो हम मिसाल देकर आदमी से कहते हैं, ताड़ के झाड़ की तरह लंबा हो गया, अकल तेरी अभी घुटनों से ऊपर नहीं गई। हम कहते हैं ना, ये आदमी की अकल के लिए हम कहते हैं। आप यकीन कीजिए, हम में की एक बड़ी तादाद, सब नहीं तो थोड़े बहुत ऐसे जरूर हैं जिन पे यही मिसाल थोड़े फर्क के साथ सादिक आती है। जिस्म तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया,
जिस्म तो बड़ा तनावर, बड़ा मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया, लेकिन तुम्हारी रूह आज भी बच्चा ही रह गई। कभी तुमने अपनी रूह को ग़िज़ा देने की कोशिश नहीं की। भाइयों, ये इल्म और इबादतें मेरी और आपकी रूह की ग़िज़ा हैं। और आपको मालूम है, जब आदमी अपनी रूह की ग़िज़ा वक्त पर सही अंदाज में उसे अदा करता है ना, देने लगता है, अब आदमी की रूह भी तरक्की करने लगती है। फिर आदमी बज़ाहिर शक्ल सूरत के एतबार से खूबसूरत नहीं भी होगा, उसकी रूह संवर जाएगी, उसकी शख्सियत में तब्दीली आ जाएगी। आदमी जिस्मानी तौर पे बज़ाहिर कमजोर होगा, पर्सनालिटी देखने में कोई बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आएगी, लेकिन रूह अगर आदमी की ताकतवर हो जाए ना, इस दुबले पतले आदमी को सारी दुनिया अपने सामने नहीं झुका पाएगी। और आप यकीन करो, इस रूह को अगर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको तौफीक दी और हमने इसे परवान चढ़ाया, ये रूह इस कदर ज्यादा अजीम होती चली जाएगी कि फिर इसके सामने सारी दुनिया सुकड़ कर सिमट कर एक हकीर सी शय बनकर रह जाएगी। आज आप एक बात मैं बताऊं आपको, हम इबादतों से गाफिल, हमारे खानदानों में इबादतों की तरफ तवज्जो कम, और उसका नतीजा क्या है मालूम है? 2-2 गज जमीन के लिए 2 भाई लड़ते हैं, 1 हाथ जमीन के लिए 2 पड़ोसी लड़ते हैं। सुभान अल्लाह, 2 पार्टनर चंद पैसों के लिए लड़ पड़ते हैं। ये दुनिया की छोटी छोटी चीज इतना बड़ा मसला बन जाती है कि साल साल तक कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं और मस्जिदों की कमेटियों तक आकर लड़ते हैं, खानदान के बड़ों के सामने लड़ते हैं। छोटी छोटी चीजों के पीछे आदमी दीवाना वार लड़ता है। क्यों मालूम है? ये वही इंसान है जिसने अपनी रूह पे मेहनत नहीं की। अब बड़ी दुनिया, छोटी दुनिया भी बहुत बड़ी नजर आती। लेकिन भाइयों, जब आप अपने रूह की तहजीब, रूह की तरबियत, रूह को संवारना, रूह को निखारना, इबादतों के जरिए इसको बड़ा करना, इसे परवान चढ़ाना, इस पर अगर आप मेहनत करेंगे ना, आप इतने बड़े हो जाएंगे, सारी दुनिया भी आपके सामने लाके कदमों में रख दी जाए, एक ठोकर से आप उसको उड़ा देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि हकीकी कद्र कीमत अंदर वाले इंसान की है। आपको पता होगा मैं इतनी छोटी चीजों के लिए झुकने लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ। आपकी जिंदगी में ये एहसास जागेगा। अल्लाह के बंदो, इस रूह की जरूरत को समझो और इन इबादतों की तासीर को समझने की कोशिश करो। भाइयों, मैं एक पहलू और भी आपके सामने उजागर कर लेता हूं। इस रूह की ग़िज़ा देने का या फिर इन इबादतों के एहतमाम करने का एक फायदा और है। इबादतों के एहतमाम का एक और फायदा है। वो क्या है मालूम है? अल्लाह ताला ने हम और आपको हैवानात की कबील से बनाया। आप जानते हैं अल्लाह की मखलूक़ात में नबातात हैं, जमादात हैं, हैवानात हैं, और हैवानात की कबील में से इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है। अब अल्लाह ताला की तख्लीक ये है कि हम में से हर इंसान के अंदर एक हैवान बसता है। हर इंसान के अंदर एक हैवान है, उसकी अपनी जरूरतें हैं। आप ये बात याद रखो, जो आदमी अपने अंदर के हैवान की तरबियत करके उसे काबू में लाता है, वही इंसान बनता है, अच्छा इंसान बनता है, मिसाली इंसान बनता है, और वही मिसाली मुसलमान बनता है, अल्लाह का नेक बंदा बनता है। अब ये जो तरबियत है कि अंदर के हैवान को काबू में रखना, अंदर के हैवान को संवारना, अंदर के हैवान की तरबियत करना, अंदर के हैवान को नकेल डालना, यह काम अगर हो सकता है इसी इल्म और इबादत के जरिए हो सकता है। इसीलिए आप देख लो, जिस समाज में इबादतों में लोग कमजोर होते हैं ना, उस समाज की जिंदगी हैवानी उसूलों पे चलती। वो मुआमलात में इंसाफ को नहीं जानते, वो ताकत को जानते हैं। वो एक दूसरे के साथ हमदर्दी पे बात नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ ताकत के बल पर गलबा पाने वाले अंदाज में जीते। जिस मुआशरे में लोग इबादतों में कमजोर होते हैं, वो मुआशरा फिर हैवानियत का मरकज बनने लगता है। मेरे भाइयों, ये इबादतें मुझको और आपको क्या क्या देती हैं, आप जरा अंदाजा लगाएं। चलिए मैं आपको एक और पहलू भी दिखा देता हूं। इन इबादतों से अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी जिंदगी के क्या क्या मसाइल जोड़ के रखे हैं। एक मसला अल्लाह ने यह भी जोड़ के रखा है कि जिंदगी में हकीकी सुकून अगर किसी को चाहिए, पैसे में नहीं, दुनिया की नेमतों में नहीं, बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं, नरम नरम गद्दों पे नहीं, अच्छे एयर कंडीशन कमरों में नहीं, सुकून असल में है दिल के अंदर। आदमी की रूह को, आदमी के दिलो दिमाग को अगर इत्मीनान नसीब हो ना, इसे असल में सुकून कहते हैं। और अल्लाह ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, लोगों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है।
मतलब ये हुआ अल्लाह के बंदो, दुनिया में चाहे जितना पैसा कमा लो, ओहदा मुकाम पालो, कितनी ही ज्यादा तरक्की कर ले जाओ, कितना ही ज्यादा दुनिया में आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे सामने एक सूरत हाल आएगी, बज़ाहिर तुम्हारे जिस्म को आराम मिला है, थकान दूर हुई, जिस्म की तकलीफ दूर हुई है, जिस्म के अंदर ताकत कुव्वत महसूस होती है, लेकिन फिर भी अंदर की बेचैनी आपको बेचैन रखती है। क्यों? इसलिए कि आपने आराम और सुकून के फर्क को नहीं पहचाना। जिस्म के आराम का नाम सुकून नहीं, अल्लाह के बंदो, सुकून नाम है रूह के इत्मीनान का, दिलो दिमाग के इत्मीनान का, उसकी तसल्ली का। और अल्लाह ने कहा यह सुकून अल्लाह ताला इबादतों के जरिए देता है, यह सुकून अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के जिक्र के जरिए देता है। भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी में इबादतों की बड़ी जरूरत है। चलिए, ये कुछ मिसालें मैंने उमूमी तौर पर दिए, कुछ पहलू मैं आपके सामने एक एक इबादत का तज़किरा कर लेता हूं, चंद सिर्फ इबादतों का तज़किरा करूं, और हर इबादत के भी तमाम फायदे नहीं गिनाऊंगा, एक एक इबादत का एक फायदा आपके सामने गिनाऊंगा। आप देख लो ये इबादतें अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा इनाम है जो मुझे और आपको मिली। नमाज दीन इस्लाम का कलीमे के इकरार के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा रुकन है। ये जो नमाज है, इस नमाज में सारी नमाजों की बात नहीं, सिर्फ एक नमाज, नमाज फजर के हवाले से बात करो, और सिर्फ नमाज फजर के भी तमाम फायदे नहीं, सिर्फ एक फायदे का तज़किरा करो आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज में हमारे लिए क्या रखा, इस नमाज की इबादत में अल्लाह ताला ने, फजर की नमाज की इबादत में क्या रखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जो आदमी नमाज फजर पढ़ता है वो अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी में आ जाता है। अल्लाह के बंदो, कितना बड़ा वादा है, आप जरा अंदाजा लगाओ। जो आदमी नमाज फजर पढ़ता है वो अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी में आ जाता है, और जो आदमी अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाए उसकी दुनिया कामयाब, उसकी आखिरत कामयाब, वो अपने दुनिया के मामलात में कामयाब, वो अपने आखिरत के मामलात में सुरखरू हो जाता है। इसीलिए आप देखो, जो लोग नमाज फजर में कोताही का शिकार हैं, जो लोग नमाज फजर में कमी का शिकार हैं, नमाज फजर जो जाये करते, उनकी जिंदगियों में परेशानियां निस्बतन ज्यादा होती। क्यों? अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। अल्लाह ने जमानत दी थी, नमाज फजर की पाबंदी करोगे, अल्लाह की जिम्मेदारी में रहोगे। एक नमाज मुझको और आपको अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में दे देती है। इस नमाज का इतना बड़ा फायदा मेरी और आपकी जिंदगी में। दूसरी इबादत जिसका जिक्र मैं आपके सामने करूं, ज़कात इस्लामी शरीयत का तीसरा रुकन है। कलीमा, नमाज, उसके बाद ज़कात। अल्लाह की राह में माल खर्च करना एक इबादत, माली इबादत। अब इस माली इबादत के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से एक फायदा क्या है मालूम आपको? इसका एक फायदा यह है कि जो आदमी अल्लाह की राह में माल खर्च करने या देने का आदी होता है, अल्लाह की राह में माल खर्च करने, गरीबों, मिस्कीनों, रिश्तेदारों या नेकी के काम, मसाजिद, मदारिस या कोई भी खैर के काम में आगे बढ़ के मदद करने वाला होता है ना, उसको एक फायदा यह मिलता है कि उसके दिल में माल की बेजा मोहब्बत जो होती है, अल्लाह ताला उसके दिल को पाक कर देता है। आपके मेरे दिल को अल्लाह तबारक व तआला माल की बेजा मोहब्बत से पाक कर देता है, इस ज़कात की इबादत का एक फायदा सिर्फ। अब यह फायदा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए आप समझिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिल माल। हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक खास फितना रखा। इस फितने के जरिए उनकी आजमाइश होती है, उनको आजमाया जाता है। और मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने माल को सबसे बड़ा फितना बनाया है। फितना तो उम्मतिल माल, मेरी उम्मत का मखसूस फितना माल है। अब आप सोचो, जो आदमी अल्लाह की राह में माल खर्च करे, उसके फायदे के तौर पे अल्लाह ताला माल की बेजा मोहब्बत से मेरे और आपके दिल को पाक कर दे, हम उम्मत का जो बड़ा फितना है उससे बचा लिए जाएंगे। आप सोचो इस इबादत ने कितना फायदा मेरा और आपका किया। अगली इबादत रोजा। रोजे की इबादत भी ऐसी अजीम इबादत है, इसके फायदे बहुत सारे, लेकिन इसका सिर्फ एक फायदा आपके सामने गिनाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। जो आदमी निकाह नहीं कर सकता, नौजवान है निकाह नहीं कर सकता,
उसको चाहिए कि वो रोजे रखने का एहतमाम करे। फ़इन्नहु लहू विजा, इसलिए कि रोजा उसकी शहवत को, उसकी ख्वाहिश को काबू में रखने का जरिया है। उसकी ख्वाहिश जो हद से बढ़ती है उसे तोड़कर काबू में रखने का जरिया है, ये अल्लाह के नबी ने कहा। इसका मतलब ये हुआ जो आदमी रोजे कसरत से रखता है उसे अपनी शहवत को, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने में मदद मिलती है। अब ये मदद कितनी बड़ी है, ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, इसको समझने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी कहते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या अल्लाह के नबी से पूछा गया और मैंने सुना कि जहन्नम में लोगों को सबसे ज्यादा ले जाने वाली चीजें दो होंगी, एक आदमी की जबान होगी, दूसरी आदमी की शर्मगाह होगी। सुभान अल्लाह। आप सोचो दुनिया में, इस दुनिया में जहन्नम तक ले जाने का सबब बनने वाला बड़ा फितना, शहवात का जो फितना है, शहवात नफसानी का जो फितना है, इस फितने से अल्लाह ताला बचा लेता है अगर रोजे की इबादत मेरी और आपकी जिंदगी में होती है। अल्लाह के बंदो, कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा कहा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा कहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान का एक फायदा बताया। सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम बिअश्रि आयातिन लम युक्तब मिनल गाफिलीन, जो आदमी 10 आयतों के साथ क़ियाम करेगा, यानी क़ियाम में 10 आयतों की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला इसके बदले में यह फायदा देगा कि इस बंदे को अल्लाह ताला गाफिलों में कभी नहीं लिखेगा, यह आदमी गाफिलों में शुमार नहीं होगा। आप सोचेंगे ये कौन सा बड़ा फायदा है, अगर मैं कुरान की तिलावत करता हूं, नमाज में कुरान पढ़ रहा हूं, तो इसकी वजह से मुझे गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा, ये कौन सा बड़ा फायदा है, इसको समझना है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि की ये बात सुनो। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि जब बंदा गुनाह करता है, गुनाहों की सजा अल्लाह ताला आखिरत से पहले दुनिया में भी देता है, और दुनिया में किसी इंसान को उसके गुनाहों की बदतरीन से बदतरीन जो सजा हो सकती है ना, उनमें से एक बड़ी सजा यह है कि अल्लाह ताला उसके दिल पे गफलत के पर्दे डाल दे। जिस आदमी के दिल पे अल्लाह ताला गफलत के पर्दे डाल दे, वो न कुरान से फायदा उठाए, न नसीहत से फायदा उठाए, न जन्नत का तज़किरा, न जहन्नम का तज़किरा। गफलत की सजा बड़ी गैर मामूली सजा है, और कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी ये जमानत दी है कि अल्लाह तबारक व तआला गाफिलों में आपको नहीं लिखेगा, अल्लाह गाफिलों में से आपको निकाल लेगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा फायदा है। अल्लाह के बंदो, मैं बात को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता। एक एक इबादत, हर इबादत के 10 फायदे, इस तरह तमाम इबादतों को इकट्ठा करो ना तो पता चलता है जिंदगी जीना जिसे कहते हैं ये जिस्म का जीना नहीं, जिंदगी जीना जिसे कहते हैं वो दीन और ईमान की सलामती के साथ, इबादतों से रिश्ते के साथ और इबादतों से गहरे ताल्लुक के साथ जी जाने वाली जिंदगी ही असल जिंदगी है, और यही असल में मुझको और आपको करना है। हाज़िरीन गिरामी कद्र, मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता। बात खत्म करते हुए जो पैगाम आपको देना चाहता हूं वो ये कि हमने अपनी जिंदगी में इबादतों के तई जो जहन बना रखा, उस जहन से बहुत आगे जाने की जरूरत है। इन इबादतों के किरदार को पहचानने की जरूरत है, इन इबादतों के फवाइद और समारात को समझने की जरूरत है, और जो फवाइद अल्लाह ताला ने बताए हैं वो हैं, जो अल्लाह ने नहीं बताए न जाने और क्या क्या फायदे। रब्बुल आलमीन ने अगर ये इबादतें मुझ पर और आप पे उतारी हैं कि हम फर्ज या नफिल दर्जे में इन इबादतों को अंजाम दें, यकीन माने इसमें मेरा और आपका खैर ही खैर है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन इबादतों के करने का हुक्म दिया। और आज अक्सरियत की इबादतों से ला ताल्लुकी और जिन लोगों का इबादत से ताल्लुक है, उनमें की अक्सरियत की इबादतों के तई एक तरह का कमजोर रिश्ता, ये दोनों चीजें हमारे और आपके समाज का बहुत बड़ा मसला। आज हमें अपनी इबादतों पे तवज्जो देकर अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। अगर हमारी इबादतें मजबूत होने लगी, संभलने लगी, तो हम बड़े ताकतवर हो जाएंगे। हर एतबार से हमारा और आपका ईमान भी मजबूत होगा, और हम और आप भी बहैसियत कौम भी, बहैसियत फर्द भी बड़ी मजबूत पोजीशन में आएंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को इन इबादतों से मजबूत रिश्ता कायम करके अपने आप को रब्बुल आलमीन से जोड़े रखने की तौफीक अता फरमाए। हम और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।